You may be seated. बैठ सकते जल्दी से. It's a great time. It's a wonderful time when we are spending the great moment in the presence of God. बहुत ही अच्छा वक्त है जो हम खुदावंद की पाक हुजूरी में गुजार रहे हैं. बाहर ठंड है, अंदर रूह दी आग है. It's cold outside, but it's warm inside. The fire of Holy जोर Spirit. दी बोलो हालेलुया. जितनी मर्जी मुश्किल हो जाए, पर खुदा की आत्मा वाले लोग कभी चुप नहीं बैठते. Though how hard it is, but the people of God never been quiet. मसीह लोगों को चुप रहने के लिए परमेश्वर ने पैदा नहीं किया और उनको मुश्किलों से उन्हें परेशानी से नहीं निकाला. God has never made people out from their problems so that they may be quiet. आप चुप करोगे तो पत्थर चला उठेंगे. If you will be quiet, then the stones will speak. जोर दी बोलो. आज का आपका परमेश्वर आपको आप बचाएगा. आज Tonight your God will deliver you. आज आपका परमेश्वर बचाने की हिम्मत रखता He है. will save you because he has that might. Somebody say. कल मैं किसी मीटिंग में था, काफी बातचीत हो रही थी वहां पर. Yesterday I was in a meeting and we were talking about something. मेरे को एक ब्रदर जी कहते पादरी साहब ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. And he said that, Pastor, I think that the black color is a curse. ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. It's a curse and we believers should not wear it. ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ. ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ. I told him that, brother, I think that you have never been to school. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਆ. He said, no, I have been there. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ. And I told him that when you study in your school, there is a black board in front of you. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ. ब्लैक बोर्ड होता, अगर ब्लैक बोर्ड ना होता तो आज आप बोलने के लायक भी ना होते. And if the black board wasn't there, you was not being. काला रंग कितना नैश हो सकता है स्कूलों च तो ब्लैक बोर्ड च पढ़ाई कीती है. How can the black be the cursed color if you have studied in school on a black board? बोलो जोर दी बोलो हालेलुया. आपको पता है, एक बार याद रखना, ये वहम में जितनी वहम है ना, ये सारी बातें. Remember that all the intentions that mislead you, doubts हैं जॉन से, all these doubts, ये misleading thoughts हैं जॉन से, and all these doubts that mislead you. जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, when Jesus came out from his tomb, सभी कह रहे थे वहम है, ये हो नहीं सकता. They said that it's a myth, it cannot be कितने लोग happening. मिसलीड कर रहे थे कि ये ऐसा होगा नहीं कि यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जाए. Many people were not thinking that Jesus can come out from the जब यीशु tomb. मसीह कब्र से बाहर आया, When he came out from there, उसने वहम का कत्ल कर दिया. he killed that doubt. जोर दी बोलो. मसीह लोकां ਲਈ कोई वहम नहीं है. There is no doubt for believers. कोई वहम मत रखना अब अपने जीवन Do में. not keep any doubt in your heart. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. आपके नीचे वाले लोग आपको हमेशा ही तंग करेंगे, आपको हमेशा परेशान करेंगे अगर आप वहम में चलोगे. People under you, behind you, will always tease you because if you walk in doubt. अगर आपकी यारी दोस्ती उस परमेश्वर के साथ है, ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाले आपको तंग नहीं कर सकते. And if your relationship is with God, no people in this world can tease you. जोर दी बोलो, जोर दी हालेलुया. अब कोई बोले ना आपको ब्लैक रंग नैश ਹੁੰਦਾ है, दस दियो कि ਅਸੀਂ ब्लैक बोर्ड ਤੇ पढ़ाई कीती है. And if someone says that black is a cursed color, tell them that we have studied on a black board. Somebody say hallelujah. समझो आज का वचन आपको ऊंचा करेगा. Now understand, this word will lift you up. एक वहम है जो कि शैतान ने हथियार बनाकर मसीह लोगों के बीच में बड़ी तेजी के साथ चल रहा है. आज वहम का कत्ल होगा. आज There is one doubt that Satan has put in people's lives, and tonight that doubt will be dead. जोर दी बोलो. आगे से बिल्ली निकल जाए, कुछ इधर से हो जाए, पिछो कोई आवाज मार लवे, बड़े वहम है थे, है ना. If cat walks cuts your way, if this happens, that happens, there are so many doubts. ये वाले वहम परमेश्वर के कलाम में नहीं लिखा इसके बारे में. Those doubts are not written in the word पर of ऐसी God. आवाजें आपको हमेशा एनकाउंटर करती हैं, ऐसी स्टेटमेंट हमेशा एनकाउंटर करती हैं. These kinds of voices and statements will always encounter. आज आपको तय करना है कि आप उसको वहम को मारें. आज You must have it decided that you have to kill that doubt. जोर दी बोलो. कितने लोगों को ये लगता है यार जब मैं ये कलर डालता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होता है, बड़ा दिन अच्छा निकलता है मेरा ना. कई लोगों को होता है. People think that if they wear that color, then that day is good. कई किसी की शक्ल देख लेते तो कहते हैं कि आज इस बंदे की शक्ल की दिन चंगा निकलेगा. And if they see someone, they say, now my day will be good today. अगर वही बंदे की शक्ल रोज देख दे, एक दिन पैड़ा होवे कि आज तो मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी. And if something happens bad, then they say that I won't see you again. Somebody say, जोर से बोलो. समझो बात को. आज का वचन आपको वहम से निकालना चाहता है. Now understand that today's word will take you out from that doubt. Somebody say, बड़े ध्यान से सुनना आज का वचन. रेडी हो? जोर दी बोलो.
ये वचन आपके जीवन में हथियार बनेगा आज। This word will be a weapon for you. बहुत सारी चीजें सिद्ध होने जा रही हैं आज। So many things will be straightened up. ठंड तो नहीं लगती भाई? Are you feeling cold? जोर दी बोलो एक बारी, जोर दी बोलो। कितनी काफी लोग ठंड की वजह से नहीं आए, कई काफी लोग बीमार भी हैं, कई कोई एलर्जी में है, पर खुदा ने आपको लेकर आया। पर याद रखो, आपने बीमारियों को हरा दिया। Many people didn't came because of the sickness and a cold and allergies, but you are here because you have defeated those sickness. प्रार्थना करो अपने भाई बहनों के लिए जो नहीं आ सके, कि यीशु मसीह के नाम में वो आ सकें और वो ही इस खुशी और इस जश्न का हिस्सा बन सकें। Pray for the brothers and sisters who couldn't came so that they may be able to be the part of this fellowship. समिट से हालेलुया। चलिए खुदावंद के कलाम की तरफ देखें। Deuteronomy chapter 27 उसकी 1 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। Let me read in English, then brother Rashid will translate in Urdu and Hindi as well. It says like this: Moses and the elders of Israel commanded the people, keep all these commands that I give you today. When you have crossed the Jordan into the land the Lord your God is giving you, set up some large stones and coat them with plaster. Write on them all the words of this law when you have crossed over to enter the land the Lord your God is giving you, a land flowing with milk and honey, just as the Lord the God your ancestors promised you. And when you have crossed the Jordan, set up these stones on Mount Ebal, as I command you today, and coat them with plaster. Build an altar to the Lord your God, an altar of stones. Do not use any iron tool on them. Build the altar of the Lord your God with filled stones, and offer burnt offering on it to the Lord your God. Sacrifice fellowship offerings there, eating them and rejoicing in the presence of the Lord your God. And you shall write very clearly all the words of this law on the stones you have set up. And these tribes shall stand on Mount Ebal to pronounce curses. Understand this. And these tribes shall stand on Mount Ebal to pronounce curses: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Opher, and Naphtali. इस्तस्ना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी पहली से लेकर उसकी 13वीं आयत तक कुछ लिखा है। फिर मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के साथ होकर लोगों से कहा कि जितने हुक्म आज के दिन मैं तुमको देता हूं उन सबको मानना, और जिस दिन तुम यरदन के पार होकर उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंचो, तो तू बड़े बड़े पत्थर खड़े करके उन पर चूने की इस्तिरकारी करना, और पार हो जाने के बाद इस शरीयत की सब बातें उन पर लिखना, ताकि उस वादा के मुताबिक जो खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे किया उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, यानी इस मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, तू पहुंच जाए। सो तुम यरदन के पार होकर उन पत्थरों को जिनकी बाबत तुमको आज के दिन हुक्म देता हूँ कोहे इबाल पर नस्ब करके उन पर चूने की इस्तिरकारी करना, और वहीं तू खुदावंद अपने खुदा के लिए पत्थरों का एक मज़बा बनाना और लोहे का कोई औजार उन पर ना लगाना, और तू खुदावंद अपने खुदा का मज़बा बेतराशे पत्थरों से बनाना और उस पर खुदावंद अपने खुदा के लिए सौख्ती कुर्बानियाँ गुजराना, और वहीं सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाना और उनको खाना, और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खुशी मनाना, और उन पत्थरों पर उस शरीयत की सब बातें साफ साफ लिखना। फिर मूसा और लावी के काहिनों ने सब बनी इस्राएल से कहा, ए इस्राएल खामोश हो जा और सुन, तू आज के दिन खुदावंद अपने खुदा की कौम बन गया है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनना और उनके सब आइन और अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अमल करना। और मूसा ने उसी दिन लोगों से ताकीद करके कहा कि जब तुम यरदन पर पार हो जाओ तो कोहे युजीम पर शैमौन और लावी और यहूदा और इश्कार और यूसुफ और बनियामीन खड़े हों और लोगों को बरकत सुनाए, और रूबन और जद और आशर और जबूलून और दान और निफ्ताली कोहे इबाल पर खड़े होकर लानत सुनाए। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल करो बंद और मेरे पर ध्यान से आप सुनना इस वचन को। ये जो लोग ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने खुदावंद के उस विशेष कमांडमेंट को सीखा है, आज आप समझो कि आप वहम से कैसे निकलोगे। People who have read the Old Testament and those have understood the characteristics of God, you will understand that how you can get out of that doubt. समझ से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। सुनो, वचन में लिखा खुदावन ने याकूब को कहा कि तेरे पर मैं ऐसी गोत बनाऊंगा, ऐसी गोत बनेंगे, 12 गोतों को मैं नियुक्त करूंगा, और जितने गोत होंगे उन पे विशेष अथॉरिटीज होंगी उनमें। God has promised Jacob that I will make 12 tribes out from you and those tribes will rule. Somebody say hallelujah.
और वचन में लिखा है जब लिया ने 6वां बच्चा पैदा किया जिसका नाम जेबुलून था, वो एक 6वीं ऐसे ट्राइब में तब्दील हुआ जिसे परमेश्वर ने खास बरकत दी वहां पर। And when Leah gave birth to a child whose name was Zebulun, and God has given them a very great blessing. Somebody say hallelujah. और खुदावन ने कहा कि इस बच्चे के दौरान, इस बच्चे की जिंदगी में मैं एक ऐसी बरकत दूंगा, एक ऐसी खास अथॉरिटी दूंगा जिससे तेरा पूरा का पूरा ट्राइब एक खास अथॉरिटी में एक विक्ट्री को हासिल करेगा। And God has promised him that I will give such an authority to Zebulun that through that tribe your generations will be blessed. लिया ने कहा कि मैंने एक ऐसा बच्चे को पैदा किया, 6वें गोत्र को पैदा किया है, जूदा के गोत्र को पैदा किया, तो उसने कहा मैं चाहती हूं कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए एक ऑनरेबल गिफ्ट लेकर आए मेरे लिए। And Leah has said that if I have given birth to a child Zebulun and Judah, I want my husband to bring me a very precious gift. और उसने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा नहीं चाहिए जो दुनियावी तोहफा हो, मुझे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो खुदावन की तरफ से हो और इस ट्राइब पर वो राज कर सके। And she said that I do not want any worldly gift, I want a godly gift so that my generations, my son will rule. याकूब ने प्रार्थना की, and Jacob prayed, और जब प्रार्थना की उसने अपने खुदावन से पूछा कि मैं कौन सा गिफ्ट दे सकूं इसे। and he prayed and asked God that which gift shall I give to my wife. खुदावन ने याकूब को कहने लगा कि जाके लिया को बता दे। God told Jacob that go and tell तेरे Leah गोत्र में स्टैंडिंग अथॉरिटी होगी यहाँ पर, that your tribes will have that standing authority. ये वाला गोत्र वो गोत्र होगा जो कर्स करने वाला होगा। This tribe will be the one who will curse. जोर से बोलो, मैं समझाता हूं आपको। परमेश्वर ने कहा तुम ब्लेस करने वाले नहीं बल्कि कर्स करने वाले बनोगे। I'll make it understand to you. You are not going to bless, you are going to curse. जब हम स्टैंडिंग अथॉरिटी की बात करते हैं, ये ऐसी स्टैंडिंग अथॉरिटी है परमेश्वर के कलाम में लिखा जो कर्स करने के लिए खुदा ने तैयार किया उन्हें। And God has given that standing authority and God had prepared them to give curse. Somebody say hallelujah. और वचन में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा कि जब ये पूरा गोत्र खड़ा हुआ, जब वो कनान देश में दाखिल हो रहे थे, उन्होंने खड़े होते हुए उन्होंने काफी दुश्मनों को कर्स करना शुरू किया, उनकी स्पिरिट को कर्स करना शुरू किया, श्रापित करना शुरू किया कि इजराइल पे ये हैवी ना हो सके। And the word says that when they were passing by Jordan, they stood there and they started cursing their enemies and their spirits. Somebody say hallelujah. जोर दी बोलो। आप समझो एक बात को ध्यान से सुनना आज कि खुदावन ने ये वाली स्टैंडिंग अथॉरिटी हर एक व्यक्ति को दी है जो यीशु मसीह पे ईमान रखता है। Now understand that God has given that kind of standing authority to the believer who stands in Jesus Christ. स्टैंडिंग अथॉरिटी का मतलब है कि जब आप अथॉरिटी में चलते हैं उसे परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। It means that when you walk in that authority, you have to perform it. स्टैंडिंग अथॉरिटी वो अथॉरिटी आपको परमेश्वर पोजीशन देता है, उसे इस्तेमाल करो आप। It means that when God gives you a position, you must use it. Somebody say hallelujah. आपको पता किन चीजों को कर्स करना है आपको? Do you know what things you have to curse? जब खुदावन ने आपको अथॉरिटी दी है, ऐसा बल दिया है, ऐसी हिम्मत दी है, When God has given you that kind of authority and that kind of might, इब्लीस की वो स्पिरिट्स हैं जो जिनकी आदतें गंदी होती हैं, जिनकी जीवन में सारा नेगेटिविटी होती है, अंधकार से जो भरे होते हैं, उन स्पिरिट को आप कर्स करने की हिम्मत रखते हो। because there are some satanic spirits that put you in bad things and you are the one who will curse those spirits. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। एक ऐसी स्टैंडिंग अथॉरिटी की बात परमेश्वर यहाँ पे कर रहा है। परमेश्वर बताना जा रहा है कि आपको अब कर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। And God is telling you about that standing authority that you must curse those अब things. उन स्पिरिट्स को कर्स करो जो बीमारी लेकर आती, गरीबी लेकर आती है, आपके ऊपर शराब लेकर आती, जादू टूने लेकर आते हैं। आप उन स्पिरिट को आप उन चीजों को कर्स करने की हिम्मत रखते हो। And now you are the one who has that authority to curse that sickness and all those things that bring poverty in your families. Somebody say hallelujah. खुदावन ने कहा इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करो आप। God has said, use that authority. और कोई अथॉरिटी तुम्हें इस्तेमाल नहीं करनी, आपको यही एक खास अथॉरिटी इस गोत्र में होगी कि जब दुश्मन आएगा आप उसकी स्पिरिट को कर्स कर दोगे, वहीं पर कमजोर हो जाएगा। You don't have to use any other authority, but this authority that God has given to that tribe, so that when you curse, your enemy will fall. Somebody say hallelujah. आपके घर पे बीमारी नहीं कभी आ सकती, आपके घर पर गरीबी नहीं आ सकती अगर आप इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने वाले हो। Sickness and poverty can never overcome your family because if you are the one who will use that authority. आप उसी चीजों को, उसी स्पिरिट को आप कर्स कर दो कि वो आपके घराने पर, आपके बच्चों पर कभी राज ना कर सके। And curse that spirit so that it may not never overcome your family. Somebody say hallelujah. जोर से बोलो।
आपको पता है परमेश्वर ने जब इनको ये अथॉरिटी दी, You know, when God gave them this authority, खुदावन ने बहुत स्ट्रिक्टली इनको बोला कि और कोई भी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं करनी, आपके पास एक विशेष अथॉरिटी है, इसे परफॉर्म करो और इसे यूज करो। अब God commanded them not to use any other authority. This is the very great authority that I have given you. You must use this. somebody say, अगर आपको वॉचमैन की ड्यूटी मिलती है तो ड्राइविंग नहीं कर सकते आप। If you are a watchman, you cannot drive. आप ड्राइविंग की जॉब नहीं साथ साथ कर सकते अगर वॉचमैन की ड्यूटी है तो। And if you are a driver, you cannot do as a job as a watchman. आपको सैलरी किसकी मिल रही है? एज अ वॉचमैन की। You are getting a salary of a watchman's आपको job. ड्राइविंग की सैलरी नहीं मिल रही, आपको वॉचमैन की सैलरी मिल रही है। You're not getting a salary of a driver, but a watchman. आप अपनी मर्जी से अपनी जॉब नहीं बदल सकते हो। You cannot change your job by your own will. somebody say, जब तक हायर अथॉरिटी आपको अपॉइंट ना करे, आप अपनी मर्जी से आप पोजीशन बदल सकते हो। Unless the higher authority gives you changes your position, can you do that? अगर आप अपनी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट में क्या बॉस बन सकते हो? If you want to be a manager in a company, can you be like that? आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जो आपको जिस हायर अथॉरिटी ने आपको नियुक्त किया है, आपको वो ही पोजीशन को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। You cannot do anything by your own will, but the position that God has given you, you must use that. somebody say हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप उन स्पिरिट्स को कर्स करने की हिम्मत रखते हो, वो वाली अथॉरिटी परमेश्वर ने, उस खुदावन ने हर एक व्यक्ति को ब्लेस करके दी है जो उस जूदा गोत्र में से निकला है और यीशु मसीह उस गोत्र का हिस्सा है। And all the people who came out from the tribe of Judah, God has given that such kind of authority so that you may curse those kind of spirits. और हम उस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं, उस यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जिसने हमें ये वाली अथॉरिटी से निवाजा है। And we have faith on that Jesus Christ who has given us this authority. somebody say, जोर से बोलो। आपको पता कि आपके ऊपर ये लोग हैवी क्यों हो जाते हैं, गरीबियां हैवी क्यों होती हैं, मुश्किलें हैवी क्यों होती हैं? क्योंकि आप उन स्पिरिट्स को कर्स नहीं करते हो। Do you know why people overcomes you, those spirits and those poverties overcomes you? Because you do not use your authority. आप उनके साथ मिंगल नहीं हो सकते हो। You can't mingle with them. आप उनके साथ रिश्ता नहीं तय कर सकते You cannot make a relation with them. आपको इंसान को कर्स नहीं करना, उनके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है उसको कर्स You करना। don't have to curse a person, but a spirit that works inside him. somebody say हालेलुया। आपके अंदर अथॉरिटी खुदावन ने दी है ऐसी। God has given you such authority. जोर दी बोलो। आपको पता है जब गेहाजी जब एलीशा का नौकर था, You know that the Gehazi, who was a servant of Elijah, और खुदावन ने उसको क्या बनाया था, उसको कौन सा काम दिया था कि एलीशा के अधीन में होकर ही तुझे चलना है। and God commanded him that you have to be obedient to your boss. जोर दी बोलो। जब तक वो अपने बॉस के अधीन में था, जब वो एलीशा के अधीन में कार्य करता था, उसका काम क्या था? तुझे एक ब्रिज बने रहना है, जो एलीशा का मैसेज तुझे ट्रांसफर करना और कुछ नहीं करना तुझे। And when he was working under Elisha, God told him that you have to be a bridge. You do not have to do anything तुझे else. सिर्फ एलीशा अपने गुरु का मैसेज को ट्रांसफर करना है, खुद गुरु नहीं बनना है तुझे। You only have to deliver your Elisha's message. You do not have to do anything else. somebody say, यहाँ पे मसीह लोग बहुत गलतियां करते हैं। Here, Christian people do many mistakes. आपकी गलतियां यहाँ पे पता लगती हैं। यहाँ पर Your mistakes are shown up जो here. खुदावन ने आपको काम सौंपा है उसमें आपको मजा नहीं आता एक्चुअल में। The work that God has given you, you do not enjoy that. You know, then we will feel no, इससे बेटर होना चाहिए। And you feel like something better should be there. हायर अथॉरिटी जब तक अपॉइंट ना करें, आपका उस पर मजा आना या आपको उस पर मजा ना आना, इट्स अ वेस्ट ऑफ थिंग्स है ये सारी। Unless the higher authority appoints you, you enjoy it or no, you doesn't mean like that. somebody say हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने प्रस्तिश करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अरदास करने के लिए, बंदगी करने के लिए बनाया है, चाहे आपको मजा आए या ना आए, आपको वफादारी से खुदावन की हुजूरी में आना है। If God has made you for a worship and praise Him and prayer, you have to come to His presence in obedience. somebody say, जोर दी बोलो हालेलुया, जोर दी बोलो हालेलुया। अब खुदावन ने क्या कहा था एलीशा को कि जब ये गेहाजी जहां पे जाए उसे मैसेज दे, वो डिलीवर करे बस। And God told Elisha that wherever Gehazi will go, he will deliver your messages. जब वो नमान के पास गया, उस पे नमान का कोड क्यों आ गया उस पर? Why did Naaman get leprosy on him? एलीशा ने उसे क्या मैसेज कहा था देने को? What did Elisha send a message to him? वो एलीशा ने बस एक यही मैसेज दिया था, उसको किसी सोने की, उसे चांदी की, किसी पैसों की जरूरत नहीं है। Elisha sent him a message. He doesn't need any wealth, not a gold, not a silver, nothing else. पर गेहाजी ने स्टेटमेंट बदल दी वहां पर। But Gehazi changed his statement. somebody say हालेलुया।
अगर आप बैरी की ताकतों को कर्स नहीं करोगे तो वो बोझ आपके ऊपर आएगा। If you won't rebuke the spirits of Satan, that burden will come आपके on सामने you. अगर ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, आपके सामने ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार में हैं, जो लड़कियों के पीछे घूमते हैं, जो गंदी बातों को अपने मुंह में करते हैं, गालियां निकालते हैं, जब तक आप उनकी स्पिरिट को कर्स नहीं करोगे वो बोझ आपके ऊपर हैवी होगा। If people used to curse, if people used to say bad words, if you won't curse the spirit that's inside him, that burden will come on you. Somebody say hallelujah. आपने देखा कितने क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, वो मसीह भी होते हैं, आज भी वो बर्डन में होते हैं, आज भी मुश्किल में होते हैं, तंगी में होते हैं, परेशानी में रहते हैं, और वो कर्स काफी देर तक चलता रहता है उनका। Do you know that there are so many Christian people and still they are under burdens and they are going through hard times because they are under that burden. They are not ready to curse the darkness spirits which is working in those people's life. जब तक आप उन्हें कर्स नहीं करते हो, जब तक उनको ताड़ते नहीं हो, जब तक उसे डांटते नहीं हो, तब तक वो कभी भी उनकी जिंदगी से दूर नहीं होगी, नहीं तो वो आपके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। वो इन मुश्किलों में आज इसलिए हैं क्योंकि वो उन चीजों को डांटते नहीं। If you'll rebuke them, if you'll cast them out, then those burdens will never overcome you. Somebody say, जोरती बोलो। एक गोत्र ने फिर गलती की यहाँ पर। And this tribe did one mistake. ध्यान से सुनो, अब गलतियां कहाँ पर हो रही हैं आज? Now understand where the mistakes are done. ये कनान के देश में खड़े होते, They are standing in Canaan, कनान में उन कनानियों को परमेश्वर ने कहा था सबको मारना है, and God commanded them to kill all the Canaanites. किसी को छोड़ना नहीं है। Spare no one. Somebody say, खुदावन ने क्या कहा था, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी कर्स करने की? कौन सी? What did God said? You have a authority to curse. जोरती बोलो, शैतान पे तरस नहीं खाना। Do not have compassion on Satan. वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ है? Does he do that? बोलो, चलो कोई नहीं, आज छाड़ देना, कल फाड़ लूंगा तेनू मैं। I'll leave him today, I'll catch him tomorrow. ओके, इदा कहंदा है वो? Does he say like that? वो कहंदा आज ही मार के जाऊं मैं। He says, I will kill him जोरती today. बोलो, अगर आप नहीं मारोगे वो तो आपको मार देगा वो। If you won't kill him, he will kill you. आज अगर आपने उसका मुंह नहीं बंद किया, आपने उसकी स्पिरिट को कर्स नहीं किया, तो वो कर्स आपको करके जाएगा, आपके बच्चों को करके जाएगा, आपके परिवार को करके जाएगा, आपके बिजनेस को करके जाएगा, तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। If you won't shut him now, he will shut you, your family and your relatives, and you won't have anything in your hands. जुबलन की इस गोत ने एक गलती की यहाँ And पर। Zebulun did one mistake here. कनान देश में खड़े होते उन कनानियों को इन्होंने कर्स नहीं किया, They didn't curse Canaanites standing in Canaan. उनको कर्स नहीं किया, उनको श्रापित नहीं किया। They didn't curse them. उनको पता क्या करने लगे, कहते हम तुम्हें गुलाम बना लेते हैं अपने, They told them that we will take you under captivity हम तुम्हें गुलाम बना लेते हैं और तुमसे काम करवाएंगे। and will make you work. Somebody say, इतने सोच की नहीं चल रही है? Now here, whose thought is there? अपनी जल्दी भी कि नहीं? Ours or not? बोलो, कई बार आपको लगता है मैं किहड़ा इहदे नाल रिश्ता कराउणा है, मैं किहड़ा विआह करवाउणा है, इहदे नाल काम ही कढवाउणा, कढवा लेना मैं इधर को। बोलो हालेलुया। कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं इहदे को मैं किहड़े नूं घर वाड़ना है, इहनूं मैं घर रखना है, मैं तो काम कढवाउणा है बस इहदे तो। And some people say that what do I have to do with that person? What work he will do for me? जिन लोगों पर सैटन ने कंट्रोल किया होता है, जिनको वो रूल करता है, उन लोगों से आपका कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। And people who are controlled by Satan, where Satan is ruling, they cannot use anything आपको for लगता है you. उन लोगों से आपको बेनिफिट है? Do you think do you have any benefit from them? बोलो जोर दी। सुनो ध्यान से बात, अगर आपको ये लगता है कि वो लोग जो जॉन से आप वो जहां पर शैतान ने उनको कंट्रोल करके रखा है, उनको अपने मुताबिक चलाता है, उनको अपने मुताबिक यूज कर रहा है, आपको उन लोगों से कभी बेनिफिट नहीं होगा, आप उन लोगों से कभी ब्लेस नहीं हो पाओगे। And the people who are controlled by Satan, you cannot get any benefit from them. You cannot be blessed from them anyway. दो गलतियां की उन्होंने, सिर्फ They did two mistakes. दो गलतियां की। ध्यान से सुनो, अब Two mistakes are here. उन्होंने एक रिश्ता जोड़ना शुरू किया They started making relations और फेलोशिप करनी शुरू की। and started making कहने fellowship. का मतलब है उन्होंने उनके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद उन्होंने बाद में थोड़ी सालों बाद उन्होंने उनके साथ रिलेशनशिप, शादियां करवानी शुरू कर दी। And after few time, they started getting married with each other. उन्होंने शादियां करवानी शुरू कर दी और उनके साथ खाना खाना शुरू कर दिया, आपसी संबंध को बनाना शुरू कर दिया। They started marrying them, they started eating with them, and they started making relations with them. Two mistakes, somebody say। यहाँ पे दो गलतियां हुई. और खुदावन ने जुबल को 7 साल के लिए स्टक कर दिया वहां And पर। God had struck Zebulun for 7 कितने years. सालों के लिए?
7 साल तक खुदावन ने स्टैंडिंग अथॉरिटी को रोक दिया वहां पर, And God stopped standing authority for और 7 स्टैंडिंग years. अथॉरिटी वो यूज नहीं कर पाए। And they couldn't use it. आज कितने मसीह लोग स्टक हुए हैं आज, And now today many Christian people are stuck. कितने बैप्टाइज्ड लोग स्टक हुए हैं, Many baptized people are stuck. कितने ऐसे लोग हैं जो अपने परमेश्वर को अपना पूरे ईमान से चाहते हैं, वो स्टक हुए हैं। And people who love God by everything they have, but they are stuck. Somebody say hallelujah. जरूरी नहीं है कि हर बंदा मसीह आप उनके साथ रिश्ता जोड़ सकते हो। Not necessary that every Christian people you can relation ये with. समझो आप अपनी जिंदगी में अगर वो शैतान के हाथ में कंट्रोल में है, आप उनके साथ रिश्ता भी नहीं जोड़ सकते हो। Remember that if they are controlled by Satan, you cannot have a relation with them. अगर आपको लगता है कि ये मसीह लोग कहलाए जाते हैं और इनके साथ कनेक्टिविटी आपकी बन सकती है, अगर वो शैतान के हाथ कंट्रोल्ड में है तो वो आपके जीवन में कर्स होगा। And if you think they are Christian and they can have a relation with you, no, if they are controlled by Satan, they cannot benefit you anyway. आपको उनकी स्पिरिट को कर्स करना बहुत जरूरी You है। have to curse their spirits. आप इंसान को कर्स नहीं करते, उसकी स्पिरिट को कर्स कर रहे You हो, don't curse the human, you curse the spirit उसके एक्शंस को कर्स कर रहे and हो, their actions. उसकी एक्टिविटीज को कर्स And कर their रहे हो, activities. उसकी सोच को कर्स And कर their रहे हो, thoughts. उसके बिहेवियर को कर्स And his कर रहे हो, behavior. उसके कैरेक्टर को कर्स And कर their रहे हो। character. Somebody say hallelujah. हर एक जुबान में से जहां शैतानी आवाज निकली उसे कर्स करो आज। Every satanic voice that comes out, curse it. आज ये कहो इस चीज को, ये वहम निकालो कि मसीह लोग, सारे मसीह लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। गलत है, it's wrong। Now you must not say that all the Christians and believers are chosen by God. ये आपको परखना बहुत जरूरी है। अगर वो कंट्रोल्ड है, शैतान के हाथों में कंट्रोल में है, तो वो कभी भी आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग का कारण नहीं बन पाएंगे। Have that wisdom that if those people are controlled by the Satan, they cannot ever be a reason of लोगों blessing के for you. बिजनेस स्टक हो चुके हैं, लोगों की मैरिज लाइफ स्टक हो चुकी है, लोगों के कारोबार स्टक हो चुके हैं, उनकी पर्सनालिटी स्टक हो चुकी है। इट्स अ रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आपने उनकी स्पिरिट को कर्स नहीं किया कभी। People's job, their businesses, their everything of their life is stuck because they never use that authority. Somebody say hallelujah. खुदावन ने 7 साल के लिए उनसे बातचीत करनी छोड़ दी और उनकी स्टैंडिंग अथॉरिटी स्टक कर दी, रोक दी वहीं पर। God stopped speaking with them for 7 years and struck their standing authority. Somebody say, जोर से बोलो। आपको पता है जब दाऊद अपने परमेश्वर में हजूरी में चल रहा था, Do you know when David was walking in the presence of God? आपको पता है जब वो बत्शेबा की औरत को उसने देखा, When he saw Bathsheba, जब उसने देखा, उसको चाहिए था कि खुदा ने उसको राजा बनाया, and God has made him a king और खुदावन ने उसको इतनी पावर, इतनी अभिषेक से भरा, and gave him so much glory and might, उस औरत की स्पिरिट को कर्स करना चाहिए था उसे। he should have to curse that woman's spirit. Somebody say, उसने कर्स नहीं किया। He didn't. आपको पता है मुश्किल क्या है? You know what the problem is? जितने आप दुनिया में लोगों से मिलते हो ना, That the people you meet around, ए भी मेरा, हाय इनू ना मैं छड्डा, हाय इनू ना मैं छड्डा, ए भी मेरा, ओदे करके तुसी प्रॉब्लम चे हो। this is mine, that is mine, he is mine, that person is mine. Because of those people you are in problem. हर व्यक्ति से बात करने की परमिशन खुदा ने नहीं दी आपको। You have not, God have never given you a permission to हर speak with व्यक्ति के everyone. साथ बैठ के खाना खाने की परमिशन नहीं दी है। God has even permitted you to eat with हर everyone. व्यक्ति को अपने घर पे बुलाकर उनके साथ टाइम स्पेंड करने की परमिशन नहीं दी खुदा ने Not to आपको। invite them and have time, spend time with अगर them. आप परमेश्वर के गोत्र में चलना चाहते हो, उसके ट्राइब का हिस्सा बनना चाहते हो, स्टैंडिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, जिससे खुदा ने अपने मुताबिक खड़ा किया, जिस अथॉरिटी के मुताबिक खड़ा किया, अगर उसे परफॉर्म नहीं करोगे तो वही कर्ज आपके ऊपर, आपके बच्चों पे, आपके परिवारों पे चलना शुरू हो जाएगा। If God has given you that authority and if you are mingling with those people, then those burdens and curses will overcome you. Somebody say hallelujah. जोर से बोला हालेलुया। वो लोग जो शैतान के हाथ में कंट्रोल्ड में हैं, आज उन्हें कर्स करना शुरू करो, उनके स्पिरिट को कर्स करना शुरू करो। People who are controlled by Satan start cursing their spirits. Somebody say hallelujah. जब दाऊद ने बत्शेबा की औरत को देखा, When David saw Bathsheba, उसके साथ नाजायज संबंध बनाया, he made a bad relation उसको with her. कर्स करना चाहिए था। He should have cursed अगर her. कोई आपको गालियां निकालता है, If someone is cursing आपके you, साथ आपके एनवायरनमेंट में, आपके सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति आता है, and if there is a person in your उसकी environment, स्पिरिट को कर्स करना शुरू करो, start cursing that spirit. प्रार्थना करनी शुरू करो, Start praying कि ऐसा व्यक्ति में से दोबारा बात ना कर सके। that person should not talk to me अगर ever. खुदावंद तू इसकी स्पिरिट को कर्स, मैं इसकी स्पिरिट को कर्स करता हूँ, You should say that God has cursed that अगली बार spirit. जब मुझे मिले, Next time when he meets परमेश्वर me, तेरी महिमा करने वाला हो, then God, he should तेरी praise आराधना करने वाला you. He हो, should worship तेरी you स्तुति करने वाला हो। and worship you, जब तक Lord. आप उसे कर्स नहीं करोगे, Until you curse आपकी him, स्पिरिट को कर्स नहीं करोगे, until you curse that अपने spirit, उस बीमारी को कर्स नहीं करोगे, that sickness, उस गरीबी को कर्स नहीं करोगे, that poverty, उस कर्जे को कर्स नहीं करोगे, that depth, वो कभी भी रिजल्ट नहीं आपका आएगा। you will not see that result. Somebody say, जोर से बोलो, जोर से बोलो,
वचन में लिखा जब उसने बतशेबा की औरत के साथ नाजायज संबंध बनाया, Word says that when he made that bad relation with Bathsheba जो बच्चा पैदा होना था, and the child who was born, खुदा ने स्टक कर दिया वहीं पर, God halted that child. रोक दिया उधर ही. He stopped it. जोर दी बोलो. खुदावंद का दास नेथन वहां पर पहुंचा, And God's servant Nathan went और there नेथन ने क्या बोला वहां पर? and he said, तूने उसकी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल किया. you have used that authority in a wrong way. जो बच्चा पैदा होगा वो मरेगा. And the child who will be born will die. Somebody say, कितने लोगों की ख्वाहिशें मर गई हैं अब. And many people's desires have गलत died. डिजायर मत रखो, Do not have a bad गलत desire. एक्सपेक्टेशन मत रखो. Do not have bad उन expectations. लोगों की तरफ ना देखो जो ऑलरेडी शैतान की कंट्रोल में है. Don't look at the people who are already controlled by उनकी Satan. तरफ अट्रैक्ट मत हो जो ऑलरेडी व्यभिचार में कनेक्ट हुए हैं. Do not attract to those people who are already in that उन लोगों के dimension. साथ यारी दोस्ती मत रखो जो ऑलरेडी लड़कियों के पीछे भागते हैं. Don't have relations with those people who are after girls. और उन लोगों के पीछे मत भागो जो चुगली करने में हमेशा अपने आप को तैयार रहते कि मैं चुगली कर सकूं कहीं ना कहीं से. And do not be in fellowship with the people who are always speaking about someone. उन्होंने दो गलतियां की, फेलोशिप करनी शुरू की और उनके साथ रिश्ते जोड़ने शुरू किए. They did two mistakes. They had a fellowship with them and started having relations Somebody with say them. हालेलुया. और खुदावन ने जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, And when the second child was born, क्यों दूसरा बच्चा राजा बना? why was he was a king? और वो राजा था, वो पहला बच्चा राजा नहीं बना. The first child died, he didn't become a king. उसकी अथॉरिटी का निरादर करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. If you'll stand against his authority, there won't be any result. आपको चहल पहल नजर आएगी, You will see people going here उनमें there, मिठास नहीं होगी, but you won't feel the taste. उनमें फ्रूट्स नहीं होंगे. You won't have the fruit. आपको चहल पहल नजर तो जरूर आएगी, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, वो भी मेरा है. वो ही लोग आपकी जीवन में वो ब्लेसिंग की कटर्स हैं, वो आपकी प्रोफेसी की कटर्स हैं, वो आपकी हर एक इच्छाओं को मारते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, उन आशीषों को खत्म करते जाएंगे. You'll see people around, but you won't get any fruit from them. They are your vision cutters, they are your blessing cutters, and they will be a reason of curse for you. जोर दी बोलो. आपको पता है जब चप्पल आप डालते हो ना, जब चप्पल डालते हो, जब आप चिक्कड़ में चलते हो, Do you know that when you wear those shoes and you walk in a mud, जब चिक्कड़ में चलते हो वो आपको पैरों नीचे से तो बचाता है आपको, it saves you from the bottom of your पर feet, पीछे से कपड़े खराब करता है वो but आपके. from behind your clothes are messed up. जोर दी बोलो. ऐसे लोगों से बचकर रहो Be careful from these people. जो आपको नीचे से तो बचा रहे हैं, Those who can save you from the सामने behind. से आपके मीठे हैं, They are good in the front, पीछे से सारा गंद डाल रहे हैं वो. but they are putting garbage on you from Somebody behind. say हालेलुया. चप्पल वाले लोगों से बच के रहो. Save yourself from those kind of people. जोर दी. ऐसे वाले कैरेक्टर वाले लोगों से बच के रहो. Save yourself from those वो characters कंट्रोल्ड है शैतान के हाथों में. because they are controlled by Somebody Satan. say हालेलुया. जोर से बोल हालेलुया. अगर आपने आज रेडी नहीं हुए, If you are not ready अगर today, आज कर्स करना आपने शुरू नहीं किया, if you won't started cursing तो them, मैं आपको बता दूं आपकी स्टैंडिंग अथॉरिटी ये आपको उस बोझ में डालने वाली है. I tell you that your standing authority will bring you under that burden. तभी खुदावन के कलाम में लिखा, खुदावन ने बलराम को भी खड़ा किया और वो इसी गोत्र में से निकला है. That's why God gave stood to Balaam and he was from that tribe. He was a prophet but he was a wicked prophet. वो एक नबी था लेकिन एक बुरा नबी था. क्या था उसके पास अथॉरिटी? What authority did he had? कर्स कर सकता था वो. To बोलो हालेलुया. curse. क्या थी अथॉरिटी उसके पास? He can curse. वो कर्ज कर सकता था. हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे ईमान रखता है, आप दुष्ट आत्मा को कर्स कर सकते हो. Anyone who believes in Jesus Christ can curse the bad जब हम spirits. प्रार्थना करते हैं हम बीमारियों को कर्स करते हैं. When we pray, we curse sickness. जहां पर बीमारी है, जहां पर कैंसर है, जहां पर गरीबी है, जहां पर शराब है, जहां पर जादू टूना, कर्स करो यीशु मसीह के नाम में. Wherever there is witchcraft, wherever there is bad things, wherever is poverty, curse it. मैं कह रहा हूं आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा साथ में. I tell you हालेलुया. that the heavens will open for कौन सी you. पोजीशन परमेश्वर ने दी है वो वाली परफॉर्मेंस भी साथ साथ में करो अब. The position that God has given you, start performing the same way. Somebody say, जोर से बोलो हालेलुया. चुगली वाले को चुगली वाला बंदा ढूंढ रहा है आज. And the person who mumbles is finding for the mumbled. नशे करने वाला नशे वाले को ढूंढ रहा है आज. And the one who is intoxicated is finding an intoxicated है ना, person. कई लोग की होंगे हाँ जी इथों गल नहीं बनती भी इथों गल नहीं बनती, उस बंदे को चलिए उस बंदे के नाल गल करिए जेड़ा सा मेरे वर्गा लगता है. And people say that from here it cannot be done, from there it cannot be done. Let's go to another आपके person. सर्कल में गलत लोग कैसे हो सकते हैं? How a bad person can enter in ये your कैसे circle? मुमकिन है? आपके पास शराब पीने वाले लोग हैं आपके How is साथ. it possible that the liquor consuming आपके person is साथ there? गालियां निकालने
निकालने वाले लोग आपके साथ हैं? How can a person who say bad words with लड़कियों का you, नंबर मांगने वाले लोग आपके साथ हैं? how can those people can mingle with you? आपके साथ वो लोग हैं जो गलत इच्छा रखते हैं, वो कैसे आपके साथ खड़े हो People रहे who हैं? have bad desires are with you. How? Somebody say hallelujah. अगर खुदावंद की आवाज सुने तो आप खुदावंद की भेड़ बन चुके हो। If you are hearing the voice of God, then you are His sheep. तब खुदावंद ने क्या कहता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज को, And He says that my sheep hears my. मेरी आवाज नू, जोर दी बोलो, जोर दी बोलो। किसकी आवाज सुन रहे हो आज? Whose voice you are hearing? खुदावंद की। God's. बाहर निकलो, किसकी आवाज सुनो? When you go out, who should you hear? पवित्र आत्मा की। The Holy Spirit. बोलो हालेलुया। अगर नहीं आवाज है ना, If you won't hear that voice, तो लेट मी टेल यू, घर पहुंचते ही कर्स आपके पीछे I है। tell you that when you reach home, the curse will follow you. अगर आप कर्स में जीना चाहते हो, हमेशा कर्स में रहोगे। If you want to live in curse, you will always be in curse. खत्म करो इस सिचुएशन को, खत्म करो इस सिस्टम को, जो सिस्टम ने आपको बर्बाद किया हुआ है आज। Finish that curse, finish that system that has demolished you. Somebody say hallelujah. कोई मिन्नू आके नहीं कहता आज चलिए पैगलान चलिए। No one can come to me and says that Pastor, let's go and go to the bar. कोई मिन्नू आके नहीं कहता चलो आज जुआ खेलने चलिए। No one tells me that Pastor, let's go and have that gamble. क्यों आपके साथ ऐसा होता है? किन लोगों के साथ ऐसा होता है? नहीं पादरी मैंने खिंच के ले गया वो बंदा। And many people say, no Pastor, they forced me to do वो मेरे that. घर आ जाता, की करिए ऐसी? He comes home, what should we do? ये कैसे मुमकिन है? How is it possible? Somebody say, चाहे वो तेरा भरा क्यों ना हो, भैन क्यों ना हो, तेरा सका रिश्तेदार क्यों ना हो, वो श्रापित है फिर। Though if it's your brother, your sister or a very close relative, they are cursed. Somebody say, जब तक आपने उस स्पिरिट को कर्स नहीं किया, Unless you have cursed that आप spirit, उसे बचा नहीं सकते हो। you cannot save them. आपको अपना हथियार यूज करना पड़ेगा। You have to use your weapon. आप अच्छे बनकर उन्हें बदल नहीं सकते हो। You cannot change them by being good. आप परमेश्वर के हथियार के साथ बदल सकते You हो। have to use His weapon and परमेश्वर के pen कलाम के साथ बदल सकते हो। by the word of God. कई बार लोग आपकी आवाज को नहीं समझते, आपकी स्टेटमेंट नहीं समझते, पर आपके कैरेक्टर से लोग बदलते हैं। Sometimes people do not understand your words, but your character. आपकी जहाँ पे आप स्टैंड लेते हो, उससे वो लोग बदलते हैं। The place where you stand, by that people are जोर से changed. बोलो हालेलुया। आपके लोगों को पता होना चाहिए। अब जोर से बोलो हालेलुया। People around you must know. Somebody say, अब जुबुलून इस गोत को एक समझ आ गई थी अब। Now Zebulun understand that, अब उनको पता लग गया कुछ काम ठीक नहीं हो रहा है। and they got to know something is आपको wrong. पता है ये जो गोत्र था, ये साउल की सेना में था। You know that this tribe was in Saul's army. किसकी सेना में? किसकी सेना में था वो? साउल की आर्मी में था, और साउल डेविड का दुश्मन था। And Saul was David's enemy. और तो साउल दाऊद को मारना चाहता था। And he wanted to kill David. और उसको ये पता था कि जब तक दाऊद रहेगा, इसके लोग रहेंगे, तो मैं कभी राजा नहीं बन सकता। And he knew that unless those people will be there, I cannot be a king. जोर दी। Somebody say hallelujah. आपको पता क्या उन्होंने क्या किया? Do you know what they do? उन्होंने रियलाइज किया, कहते हैं जब भी साउल लड़ने जाता है, They realize that whenever Saul is going for a हर battle, बैटल में हजारों लोग इस गोत्र के मर रहे थे। in every battle, the thousands of people were killed in that tribe. इन्होंने सोचा कुछ तो गलती है। They thought that there's something wrong. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਫੇਲ, The work that you do, you're failed. ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਫੇਲ, This work failed. ਮਸੀਹ ਬਣੇ, बैप्टिज्म हो गया फिर फेल, Believer, baptized, still failed. फेल दोबारा फेल, अगले साल भी फेल, Again and again दूसरे failure. साल भी फेल। Failures again. एक ना मैं तुम दसा प्रॉब्लम की है। I tell you what the problem is. आपके घर में अगर क्लेश भी है ना, लड़ाई झगड़ा भी है ना, If there is a fight in your home, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। it must not run after more than 6 months. अगर 6 महीने से ज्यादा है ना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप कर्स में आ चुके हो। If it is more than a year, 2 year, 3 year, you are under curse. पहला लॉस, सेकंड लॉस, थर्ड लॉस, फोर्थ लॉस, फिफ्थ लॉस ही चली जा रहा है। देयर इज अ प्रॉब्लम। You see losses in your life again and again, over and over. somebody say अब आपको पोजीशन बदलनी पड़ेगी। Now you must change your position. आपको अथॉरिटी में आना You पड़ेगा। have to come under अथॉरिटी authority. के साथ खड़ा होना You पड़ेगा। must stand with अब आपको authority. बोलना पड़ेगा। And you must speak. somebody say हालेलुया। कहते हजारों लोग मर क्यों रहे हमारे? They thought that why 1,000 people are died. हम साउल की आर्मी में, और साउल खुदावन की तरफ से नियुक्त हुआ था। And we are in Saul's army and he was king by God. सैमुअल ने से नियुक्त किया, Samuel anointed him. और सैमुअल ने anoint करने के बाद राजे को यहाँ पर नियुक्त किया। हम इसके साथ हैं, फिर भी लॉस में। And we are with that anointed king, still we are dying.
मैंने तो क्रिश्चियन औरत के साथ शादी की थी, मैंने तो क्रिश्चियन बंदे के साथ शादी की थी, मैंने तो मसीही लोगों के साथ शादी की थी, फिर भी लॉस, फिर भी ब्रेक थ्रू हुआ हमारी लाइफ में. I married a Christian woman. I had a fellowship with a Christian man. But why there is a loss in life? हर बारी हर चीज में लॉस क्यों है हमारा? Why there is a loss everywhere? हर चीज में दरारें क्यों है हमारी? Why there are gaps? Because हमारी पोजीशन ठीक नहीं है. Because our position isn't good. अगर मसीह हो तो सही पोजीशन में आपका अथॉरिटी यूज करो. If you are a believer, you must use that position in a good place. Somebody say, जोर दी बोलो. 7 सालों में पता नहीं कितने लोग मर गए. In 7 years, do not know how many people died. अब उन्होंने सोचा, Now they thought, हेब्रोन में लड़ाई चल रही थी. in Hebron there was a battle, और उन्होंने कहा कि अब दाऊद का साथ देंगे हम. and they decided to be on side of David. कितना साथ देवांगे? जोर दी बोलो. किसकी अब हम आर्मी स्विच करने जा रहे हैं. Now we are going to switch army. अब हम साउल की आर्मी में नहीं, अब दाऊद की आर्मी में. Now we are not in Saul's army, we are in David's Somebody army. say hallelujah. अब आप वहम वाली आर्मी में ना, अब सच्चाई वाली आर्मी में खड़े होंगे. No, you are not in a doubts army, you are in a truth's army. स्टैंडिंग अथॉरिटी वाली आर्मी में खड़े होंगे. You are in army of a standing authority. अब जहां पर मैं खड़ा हूंगा, गलत को मैं गलत कहने वाला हूं. Now where I will stand, I will say wrong, शैतान को wrong. मैं शर्मिंदा करने वाला हूं. And I will shame the मैं Satan अपने कैरेक्टर से शर्मिंदा करने वाला हूं. by my character, मैं अपनी स्टेटमेंट से शर्मिंदा करने by वाला my हूं. statements, मैं अपनी सोच से शर्मिंदा by करने my वाला हूं. thoughts, अपने ख्यालातों से शर्मिंदा करने by वाला my हूं. thinking. समझ से हालेलुया. आपका हर एफर्ट शैतान के मुंह पर थप्पड़ पड़े. अब Your every effort should slap the enemy. जोर से. वो शर्मिंदा और मायूस हो. And he should be shamed and Somebody say, dismayed. the moment उन्होंने अपनी आर्मी स्विच की, The moment they switched the army, उन्होंने कहा हम दाऊद का साथ देंगे. they said we will give support to David. अब हम दाऊद को राजा बनाएंगे. We will make David as a king. अब दाऊद राजा होगा. And now David will be a king. Somebody say hallelujah. जहां पर आप खड़े हो, याद रखना, अगर खुदा ने आपको जगह दे रही, वो वाली पोजीशन दी है, वफादारी के साथ निभाना शुरू करो. Place where you are standing, God has given you that position. Start उसे performing it इस्तेमाल obediently. करना शुरू करो अभी. Start using it. The moment आप स्टार्ट करना शुरू करोगे, जो चीजें स्टक हुई हैं वो शुरू हो जाएंगी The दोबारा. moment you start using it, the stuck things will start again. Somebody say, वचन में लिखा, खुदावन के कलाम में लिखा, जब दाऊद लड़ने जाता था, Word says that when David was out for a battle, शैतान और दुश्मन जितने खड़े होते थे, Satan and enemies who stand कई there, बार तो लड़ाई हुई भी नहीं है, वो दाऊद की आर्मी देखकर ही भाग जाते थे. sometimes they didn't attack. They saw David's army and ran. बोलो हालेलुया. कई बार तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, शैतान देखकर ही भाग जाएगा. Sometimes you don't have to speak. Satan will see you and गरीबियां run. आपको देखकर ही पीछे मुंह फेर Poverty देंगी. will turn its way. वो कहेंगी इनके घर में मैं टिक नहीं सकती हूँ, It will say that I cannot stay in इनके their घराने family. में मैं टिक नहीं सकती हूँ, I cannot stay in their इनकी family. जगह पर मैं अपना घर नहीं बना सकती हूँ. I cannot make my home in their home. Somebody say हालेलुया. अगर आपने वो वाली स्टैंडिंग अथॉरिटी पकड़ ली है, If you have caught that standing authority, तो समझ लो जीत आपकी शुरू हो चुकी then है. remember that the victory is yours. वहम में नहीं चलोगे, आप सच्चाई में चलोगे. You will not walk in doubt, but in goodness. Somebody say, जब पतरस ने 3 बार इनकार किया, When David denied 3 times, तो वो खौफ में रहता था, राइट? and he was living in a fear, खौफ में वो अपना दरवाजा बंद करके बैठ गया. and he hid himself. कई बार होता है, पता क्या, जब हमारे पास परमेश्वर की अथॉरिटी नहीं ना होती, Sometimes it happens that when we do not have that छोटी authority, सी बात भी हमें इतनी बड़ी लगती है. a small thing is like a mountain छोटी for सी us. गल ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ नींद नहीं A आਉਂਦੀ. small word is like a mountain for छोटी us. सी मुश्किल पड़ जाए ना आपके ऊपर, आपका पूरा महीना खराब, Even a small bad situation आपका पूरा हफ्ता ही खराब. ruins up your month and weeks. Somebody say, जोर दी बोलो. क्यों? उनको लोग ढूंढ रहे थे पतरस को पकड़ने के लिए, And people were looking for Peter to arrest him, और वो डर के मारे छुप गया. and he hid himself. जोर दी. जब उसने वापसी की, When he returned, 3000 लोगों के सामने प्रचार किया उसने. he preached in front of वो ही 3,000 लोग people. उसे जो मारना चाहते थे उसका प्रचार सुन रहे थे. And people who wanted to kill him, they were listening his preaching. किसी भी बंदे ने उसे हाथ नहीं लगाया. No one touched him. Somebody say, अगर आप उसकी अथॉरिटी में, गरीबी खड़ी होगी, बीमारियां खड़ी होंगी, पर आपको छू नहीं पाएंगी वो कभी. And if you are in the authority of God, those sicknesses and poverties will never मैं कह रहा हूं, आपके घर में वो कभी घुस नहीं पाएंगी. they हालेलुया. cannot enter in your home. छोटी सी छोटी मुश्किलों को आप वैसे कुचल दोगे. You will crush the smaller बड़ी things, मुश्किलों को देखकर आप कभी रोओगे नहीं कभी. and you won't cry sawing a बड़ी big बड़ी problems. मुश्किलों के सामने आप जीत का ललकारा लगाओगे. And हालेलुया. you will say, proclaim a victory in आप front of बोलने those वाले बनोगे, problems. मेरा परमेश्वर महान है. हालेलुया. You will say that my God is a great शद्रक God. मेशक अबेदनगो की तरह आप आग में से वापस निकलोगे. Like हालेलुया. Shadrach, Meshach, and Abednego, you will come out of डैनियल the की तरह fire, शेरों की गुफा से बाहर निकलोगे आप. and you will come out from the lion's dens. Somebody say,
जोर दी बोलो, किसके गोत्र में हो आप? In which tribe you are? जोर से बोलो, कौन आपका मुखिया है? Who is your God? केड़ा सरदार है ਤੁਹਾਡਾ? Who's your leader? जोर दी, सारे नहीं बोलते, सारे बोलो हालेलुया। अगर सरदार ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਹੈ, If Jesus is your ruler, सरदारी साम के रखो अपनी। then have that ruleship under जोर दी you. बोलो, उस आत्मा की सरदारी ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੁਣ। Have that spirit's authority in और एक you. गल समझ लो, जब आपने उस आत्मा की पोजीशन को और उस स्टैंडिंग अथॉरिटी को अपने जीवन में रखे हुए, तो समझ जाना शैतान चाहे लेफ्ट से आए, चाहे राइट से आए, चाहे सामने से आए, रिजल्ट एक ही होने वाला है, वो हारेगा। And if you are keeping that authority and a standing authority in you, then the Satan will come from right and left, but he will be shamed. Somebody say, आप सो रहे होंगे, विक्ट्री आपका दरवाजा खड़काएगी। हालेलुया। You would be sleeping and the victory will knock on your आप सो door. के उठोगे, एक गुड न्यूज आपकी वेट कर रही होगी। You will हालेलुया। wake up and a good news will be चर्च से waiting for बाहर you. जाओगे, परमेश्वर के फरिश्ते आपके साथ, परमेश्वर के दूत आपके साथ And जाएंगे। wherever you'll go, these angels of God will जिस be with गाड़ी you. में आप बैठोगे, गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। And the car where you will be sitting, it cannot be accidented. ओ समझ से हालेलुया। ये परमेश्वर की कुवत आपको हमेशा घेर के रखेगी। The हालेलुया। word's glory will always surround you. वो बीमारी से नहीं मरेंगे, एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे। They won't die with sickness, not with accidents. जोर दी बोलो, आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, Your children won't die in hunger. श्रापित नहीं होंगे वो। They won't be cursed. आपने स्टैंड ले लिया, खुदा आपके साथ खड़ा हो You जाएगा। have taken that stand, God is standing with Somebody you. say, somebody say, तभी खुदा ने दाऊद के दूसरे बच्चे को राजा बना दिया। That's why God made David's second son as a king. तभी खुदा ने कहा कि तेरा दूसरा बच्चा राजा होगा, That's why God said that your second क्योंकि son तू will be a king. पश्चाताप के साथ आएगा। Because you will come with repentance. उसी कोख में से दाऊद का दूसरा बच्चा पैदा हुआ, And from the same womb, another child was born. और खुदावन ने उसे राजा बनाया। And God made him a king. अगर खुदा ने आपको धर्मी बनाया है, If God has made you a आपके righteous, बच्चे गैर जुबान बोलने वाले then होंगे। your children will speak in tongues. आपके बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। They will prophesy. आपके बच्चे प्रोफेसी के साथ ही पैदा होंगे। हालेलुया। They will born with that आप जहां prophecy. जहां जाएंगे, परमेश्वर का साया उन पर होगा। Wherever you will go, God. हमेशा सुबह को उठते ये कहोगे, मेरा बच्चा सेवकाई वाला बच्चा होगा। You हालेलुया। every morning when you wake up, you जो must say स्टैंडिंग अथॉरिटी में रहते हैं, हर एक घर में सेवक है। that everyone who stands in authority, all are servant in the house of God. आप मानो ना मानो, ਤੁਹਾਡੇ हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ने एक पास्टर रखा है। Believe it or not, God has made a pastor in every family. जोर दी बोलो। मैनू पता है मेरी बेटी मिनिस्ट्री करेगी। I know that my daughter will do a अगर ministry. मैं मिनिस्ट्री कर रहा तो मेरी बेटी भी, मेरा खानदान भी मिनिस्ट्री If करेगा। I'm doing a ministry, my daughter and my family will खुदा do ने क्या that. दाऊद ਨੂੰ राजा बनाया, सुलेमान ਨੂੰ राजा बनाया कि नहीं बनाया? God has made David as a king, didn't made him Solomon as a king or not? अगर खुदा ने दाऊद को राजा बनाया, उसकी औलाद को भी राजा बनाया। He made David as a king and his children too. आपको सिर बनाया तो आपके बच्चे कभी पूंछ नहीं बनेंगे। You are head, your children will never be a हर tail. चीज को खुदा लेवल आउट करने जा रहा है अब। God is going to make those things settle down. Somebody say हालेलुया। कितने लोग जीते हैं आज? How many people are victorious? जाओ ताड़ी यीशु के नाम से हालेलुया। हर एक गोत्र में परमेश्वर ने स्टैंडिंग अथॉरिटी दी है। In every tribe, God has given that authority. ये गोत्र आपको परमेश्वर ने दिया है, This tribe, God has given और you. परमेश्वर आपको ऊंचा करे आज। And God will lift you खड़े हो up. जाओ अपने पैरों पे जल्दी से। आज कहो अपने परमेश्वर को, अपने हाथों को उठाओ सभी। हालेलुया। एक मिनट प्रार्थना करें सभी। हालेलुया। रब्बो सीतो रखो, करो प्रार्थना जरा। हालेलुया। रसींदा। याद करो, अगर आपके एक सर्कल में ऐसे लोग हैं जो गालियां निकालते हैं, जो लड़कीबाज हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो नशे में हैं, चुगलियों में हैं, उनकी स्पिरिट को कर्स करो अभी। मैं कह रहा हूं अभी इसी वक्त कर्स करो। जो गरीबी के अंदर हैं, जो लॉस में हैं, उनकी स्पिरिट को कर्स करो। बोलो कि शैतान, तू इनके ऊपर राज नहीं कर सकता। तो मेरी बीवी पे राज नहीं कर सकता, मेरे बच्चों पे राज नहीं कर सकता, तो मेरे बिजनेस पे राज नहीं कर सकता, तो कंट्रोल नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस गोत्र को परमेश्वर यीशु मसीह ने खड़ा किया, उसी गोत्र का हिस्सा हूं मैं आज। हालेलुया। उसी गोत्र का वारिस हूं मैं आज। हालेलुया। ओ रबासी खुदा रबा। बोलो बोलो हालेलुया। बोलो मैं खुदावन उसी गोत्र का हिस्सा हूं आज। उस स्टैंडिंग अथॉरिटी को मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। हालेलुया। रंडा रसी खुदा रबा। मेरा परमेश्वर मेरे सारे कामों में खुदावन तुम उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। जो लोग इनके सामने बीमारी की वजह से,
गरीबी की वजह से रो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से वो शराब खत्म हो, यीशु मसीह के नाम से कर्जा खत्म हो, यीशु मसीह के नाम से कलेश की गंदी आत्मा भागे वहां से, लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा भागे वहां से, चुगली की गंदी आत्मा भागे वहां से। ऐसे लोग जो इनके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं वो खत्म हो, उनकी स्पिरिट नाश हो। खुदावन वो तेरी पवित्र आत्मा से भरे, वो तेरे पवित्र वचन से भरे, तेरी हुकूमत से भरे, हालेलुया, तेरी आराधना के महिमा के बोलों से भरे, हालेलुया। खुदावन तेरा जलाल इस जगह पर है, खुदावन तूने ऊंचा किया अपने लोगों को इस स्टैंडिंग अथॉरिटी के साथ। जिस गोत्र को तू खड़ा किया, तू खड़ा करता है खुदावन, उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता। तेरे लोग उस गोत्र के हिस्से हैं खुदावन। हर वक्त जब वे बोले एक नई विक्ट्री, एक नई आजादी हो, और तेरे बच्चे तेरी खुशी में, तेरी कुव्वत में बने रहे। तो अपने दर्द से पिता बचा के रख, दया कर, यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे, बजाओ ताड़ी यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। आज जो प्रार्थना करना, प्रार्थना ही ऐसे करना कि खुदावन मैं तेरी गोत्र का हिस्सा हूं, मैं तेरी ट्राइब का हिस्सा हूं, और उसी ट्राइब को तूने अधिकार दिया। आज मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, मैं उन सभी चीजों को श्रापित करूंगा यीशु मसीह के नाम से। समझ से हालेलुया, बजाओ ताड़ी जोर दी, हालेलुया।